Hi friends, welcome to classes by Lab Doctor. If you're new to the channel, I request you आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें and सब्सक्राइब करें so that it gives us a motivation to provide you good videos with good content. So in today's video, we will see about the glucose in the urine that is called as glycosuria. See, because you know that now India has become the diabetes capital. इतने सारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं एंड क्योंकि डायबिटीज़ के लिए वो अपना टेस्ट करवाते रहते हैं और यूरिन में हम शुगर को टेस्ट करना ये बहुत ही कॉमन रूटीन टेस्ट हो गया है एंड बिकॉज ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस दिस ग्लूकोज टेस्ट हैज बिकम अ वेरी कॉमनली डन टेस्ट इन द लेबोरेटरी. सो द ब्लड ग्लूकोज एंड द यूरिन ग्लूकोज टेस्ट ये रूटीन चेकअप में होता ही है, स्पेशली अगर पेशेंट डायबिटिक है, डायग्नोसिस के लिए हो या तो फॉलोअप के लिए हो. सो जब अर्ली डायबिटीज में व्हेन वी do this test, it will help us to improve the prognosis or to prevent the complications in cases of diabetes mellitus. So when I say glucose in the urine, that is also called as glycosuria. So it is an abnormal excretion of glucose in the urine. So जो glucose हो urine में what we see, it could be because blood level ही ज़्यादा हो गया है glucose का, like in case of diabetes mellitus, या ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ठीक है बट किडनीज आर नॉट एबल टू reabsorb the glucose, so that also can cause the glycosuria. So now when you see a urine routine report, you will see that there is no glucose which is excreted. So the normal range is negative. So we are not able to detect any glucose in the urine in a normal person. So you will see that the glucose is less than 0.5 gram is excreted per day. That is less than 500 milligram per day of excretion of glucose. So this is the normal level of excretion. थोड़ा amount excrete होता है but it will be less than 500 milligram per day, or in a random urine if you say it should be less than 30 milligram per deciliter. In gestation or in pregnancy also some amount of glucose will be excreted. Along as the pregnancy progresses, the amount of glucose which is excreted in the urine also changes. So now how do we classify this glycosuria? So glycosuria could be because of various reasons and we classify it as elementary glycosuria, renal glycosuria and diabetic glycosuria. So now this is one way of classifying. There is other way of classifying it also. एक है ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज आ रहा है यूरिन में बट ब्लड में भी ग्लूकोज लेवल हाई है, देयर इज हाइपरग्लाइसीमिया. दूसरा कंडीशन है यूरिन में ग्लूकोज जा रहा है बट ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल है. तो ये कब हो जाएगा? इन केस ऑफ रीनल ट्यूबुलर डिसफंक्शन में. रीनल ट्यूबुलर डिसफंक्शन में ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल रहता है वो नॉर्मल ही रहता है बट स्टिल जो यूरिन में ग्लूकोज पास होते रहता है. whereas in case of diabetes, whereas in case of hyperthyroidism, Cushing syndrome, drugs like corticosteroids and all, वो क्या करते हैं? ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज को भी ज्यादा कर देते हैं and there will be glucose in the urine also. So this is how the glucose metabolism takes place in the body. जब ये glucose absorb होगा हमारे intestine में, stomach में, then it is metabolized in the liver and also in the kidneys. So elementary glycosuria, I was telling this is one type of glycosuria. So what is elementary glycosuria? This happens when you eat a lot of carbohydrates at a meal. So खाने के टाइम में अगर आपने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिया या तो ज़्यादा राइस खा लिया, ज़्यादा रोटी खा लिया, एंड इन सम पेशेंट्स किसके बेरियाट्रिक सर्जरी एक्सेट्रा किए गए हो, लाइक उनका स्टमक रिमूव किया हो गया है, तो क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है आफ्टर ईटिंग एंड देन दैट ग्लूकोज विल बी पास्ड इनटू द यूरिन ऑल्सो. किडनी को उतना एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं होता है एंड वो ग्लूकोज पास हो जाता है. तो दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री ग्लूकोजूरिया. बट ये टेम्पररी रहता है.
खाने के 2 घंटे के बाद अगर आप देखोगे उस पेशेंट के यूरिन में, then there will be no glucose which is excreted. So that is called as elementary glycosuria. So in this elementary glycosuria, because of the rapid absorption of glucose from the gut, क्योंकि ये जैसे ही आपने खाना खा लिया उसमें से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा एब्जॉर्ब होके ये यूरिन में आ सकता है. लाइक इन केस ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो दिस हैपन्स. सो देर विल बी नो डायबिटीज सिम्टम्स. पेशेंट को डायबिटीज की कोई सिम्टम्स भी नहीं रहता है, उसका जीटीटी सभी नॉर्मल ही रहता है. सो ये बिनाइन और टेम्पररी कंडीशन है. दैट इज एलिमेंट्री ग्लाइकोजुरिया. एलिमेंट्री मतलब अपना जीआई ट्रैक्ट. सेकेंड विल बी योर रीनल ग्लाइकोजुरिया. सो आपको पता है कि दिस ग्लूकोज इज मैक्सिमम इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. जो भी ग्लूकोज रहता है ये पीसीटी में ज्यादा एब्जॉर्ब होते रहता है, एंड सम अमाउंट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द डिस्टल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट ऑल्सो. ये जो किडनी रहता है उसको एक थ्रेशोल्ड भी रहता है. थ्रेशोल्ड मतलब उससे अगर ज्यादा हो जाए तो वो सह नहीं कर पाएगा. इट कैन नॉट एब्सॉर्ब एंड इट विल एक्सक्रीट. दैट इज कॉल्ड एज द रीनल threshold. So renal threshold is when the plasma concentration of the substance is beyond it. Like अगर हमारे प्लाज्मा में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इतना बढ़ गया है कि किडनी उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहा है, थ्रेशोल्ड से ऊपर चला गया. पेन थ्रेशोल्ड जैसे बोलते हैं, अगर किसी को पेन है उनका एक लेवल ऑफ टॉलरेंस रहता है, उस लेवल से ज्यादा हो गया तो वो सह नहीं कर पाएंगे. उसी तरह किडनी भी सह नहीं कर पाएगा, वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेगा एंड वो जो भी सब्सटेंस है, जो ग्लूकोज है, वो यहाँ से निकल जाएगा. सो एट दिस लेवल, एट दिस थ्रेशोल्ड जो 180 तक हम जो बोलते हैं 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उस लेवल पे the filtered load exceeds the absorptive capacity of the tubules. एब्जॉर्प्शन का जो कैपेसिटी है किडनी का उससे ज्यादा वो फिल्टर्ड का लोड जो रहता है वो ज्यादा हो जाता है. सो जैसे कि देर आर फ्यू सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज हो, प्रोटीन्स हो एंड ऑल, उसका हाई थ्रेशोल्ड रहता है. किडनी में उसका थ्रेशोल्ड हाई रहता है, मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी किडनी में रहता है. बट कभी कभी जैसे कि यू नो वेन एवर देर इज एनी कंडीशन वेर इन द सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन ही इतना ज्यादा हो गया तो किडनी भी फेल हो जाता है, उसको एब्सॉर्ब नहीं कर पाता है, एंड दैट इज द time when it comes in the urine. So that is what is called as renal threshold and renal glycosuria. So mainly ये क्यों होता है? Because of impairment of the tubular reabsorption of the glucose and also because of the lowered renal threshold of glucose. Like in case of pregnancy and all, क्या हो जाता है, जो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहता है वो थ्रेशोल्ड ही कम हो जाता है. So because of either the threshold कम हो गया या तो ट्यूब्यूल्स में कुछ डैमेज हो गया, then the glucose can be seen in the यूरिन. सो इन सच केसेस जरूरी नहीं है कि अपने ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो, ग्लूकोज का लेवल नॉर्मली हो सकता है. बट अगर किडनी में ही कोई डैमेज है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में ही कुछ डैमेज है, तो अगर नॉर्मल भी होगा तो भी वो एक्सक्रीट कर देगा. अगर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल है, थ्रेशोल्ड कम हो गया तो भी वो एक्सक्रीट कर देगा. सो बिलो नॉर्मल रीनल थ्रेशोल्ड जो ग्लूकोज आ जाएगा वो सभी एक्सक्रीट हो जाएगा क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड ही कम हो गया है. तो ये जो रीनल ग्लाइकोसूरिया है ये भी एक बिनाइन कंडीशन है. इसको देयर विल बी नो डायबिटीज इन सच केसेस. आई टोल्ड यू इट कैन ऑकर इन केस ऑफ प्रेगनेंसी एक्सेट्रा. सो एंड ऑल्सो इन केस ऑफ Fanconi syndrome wherein there is damage to the proximal tubules. And third would be diabetic glycosuria. Diabetic glycosuria, as you all know, it is a pathological condition जहाँ पे इंसुलिन इधर कम होता है या तो सेंसिटिविटी टू इंसुलिन बहुत कम हो जाता है, which leads to high blood sugar. So though the renal threshold यहाँ पे नॉर्मल रहेगा, रीनल थ्रेशोल्ड एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी किडनी की नॉर्मल रहेगी, रीनल का एब्जॉर्प्शन नॉर्मल रहेगा, क्योंकि सीरम में इतना ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, एंड दैट विल पास इनटू द यूरिन एज ग्लाइकोजुरिया. So these are the causes of glycosuria. One is renal glycosuria. Renal glycosuria is due to either low threshold, renal का threshold ही कम हो गया है, या तो there is damage to the proximal convoluted tubules. This happens in case of Fanconi syndrome, in case of pregnancy, etc.
Then gestational glycosuria, whereas I've told you there is reduced renal threshold. So the renal threshold जो 180 रहेगा वो कम हो जाएगा, and that is why glucose gets excreted in the urine. That is called as gestational glycosuria. Elementary glycosuria, यहाँ पे क्या होता है, the more amount of glucose is absorbed in the alimentary tract, so या तो हमारे intestine में, and that is why it is excreted in the urine. That is called as elementary glycosuria. And endocrine causes, because of certain hormones, like in case of insulin का अगर sensitivity कम है या insulin ही कम हो गया, that happens in case of diabetes mellitus. Acromegaly, growth hormone का deficiencies या growth hormone abnormalities में, Cushing syndromes में, hyperthyroidism में, pancreatic कोई disease है, chronic pancreatitis etc. हो गया है. So all these things can lead to glucose in the urine. So that is all about different types of glycosuria. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.